ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان طریقے انصاف جیتے گی، 2/3 اکثریت سے جیتے گی۔ میں خان صاحب کا سپاہی ہوں اور میں نے پورے پاکستان کے یہ جو جگیردار اور وڈیرے ہیں ان کی سیاست کو میں نے چیلنج کیا ہے۔ جس سڑک پہ میں سفر کر کے آیا ہوں اس سڑک کے لیے 3 بار فنڈ ریلیز ہو چکے ہیں، وہ فنڈ یہاں کے متعلقہ عہدیدار کھا چکے ہیں۔ انشاءاللہ میرا یہ خواب اور ڈریم اور میری منزل ہے کہ اس علاقے کو میں نے منی لاہور بنانا ہے۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ میزبان محفل اور جوئی صاحب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے صرف اتنی اپنی گوناگوں خصوصیت کے باوجود مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ یہ ٹائم نہیں ہے، میں آپ کے اور جوئی صاحب کے درمیان زیادہ قائل حائل نہیں ہونا چاہتا، صرف ایک شعر میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری آج جوئی صاحب سے ملاقات ہوئی، جیسا ان کے بارے میں سنا تھا یہ کوئی ان کے منہ کی تعریف نہیں ہے، یقین جانے کہ اس سے بڑھ کر انہوں نے بیان دیا۔ ہمارا آج کا سب لوگوں کا اکٹھا ہونے کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی اورنگزیب کے ساتھ ان کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ اس جنگ میں ان کا بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ میں جو سب آپ کو بتانا چاہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا گاؤں، پوری برادری، دونوں کندوال، دونوں سالوال اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا علاقہ آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب آپ کے سپاہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جان، ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان ہے۔ دیپال پور، اختر آباد، گجرا، شیرگڑھ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ ساڈا لیڈر اور ساڈا ایم این اے صرف چودھری اورنگزیب صاحب نے، اور انشاءاللہ جس دن میرے قائد چودھری اورنگزیب صاحب انشاءاللہ ایم این اے بن کے اسمبلی سے جان گے تے ایس کندووال دا نام انشاءاللہ پورا پاکستان جانے گا۔ اور میں سمجھنا جتھے جنیاں برادریاں بیٹھیاں نے اے نال نال دے پنڈاں چوں آئے نے، میں تانوں مبارک دینا اور تہاڈا شکریہ ادا کرنا کہ تسی میرے قائد واسطے وقت کڈ کے آئے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پھر آؤ اپنے نبی کی تعلیمات کی طرف، پھر آؤ اپنے نبی کے اسوہ کی طرف، بے شک تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بڑے بھائی جناب چودھری نور سمد صاحب جنہوں نے یہ آج کی تقریب کا انعقاد کیا اور اتنے خوبصورت جلسے کا انعقاد کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا، یہ بات میں بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے گھر والوں سے زیادہ باہر والوں کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میرے گھر والے تو ہر حال میں میرے ساتھ کھڑے ہیں، دن ہو رات ہو، روشنی ہو اندھیرا ہو، تکلیف ہو آسانی ہو، کہ گھر والے تو ہمیشہ ہی کھڑے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ لوگوں میں سے زیادہ یہاں جو چل کے آیا ہے وہ کوئی 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آیا ہوگا، کوئی 1 کلومیٹر کوئی ساتھ والی آبادی سے آیا ہوگا۔ میرے ایک بہت ہی پیارے بھائی آصف سکی صاحب چیئرمین اختر آباد سے، وہ وہاں انہوں نے میرا استقبال کیا اور پھر سارا رستہ ہمارے ساتھ رہے، ابھی بھی یہاں سٹیج پر بیٹھے ہیں اور جب تک میں نے واپس لاہور نہیں چلے جانا وہ جاگ بھی رہے ہیں اور ساتھ بھی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو فیملی ہے کندوال سرائے کی، میرے جتنے بھی بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، چوری صبح صادق صاحب یہاں موجود ہیں، کہ اللہ کی ذات کے ڈر کے علاوہ اگر آپ کے دل میں کسی اور کا ڈر ہے تو یہ شرک ہے۔ ڈر
वादा ला शरीक अल्लाह का है, जो आपको भी रोजी देने पे कादिर है, जो मुझे भी रोजी देने पे कादिर है। मैं आप लोगों को कुरान पाक से एक और वाकया बताऊंगा, सूरतुल फील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिसहाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तदलीलिम व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल। वो लोग जिन्होंने मक्के पे हाथियों के साथ हमला किया, आप ये देखें कि हाथी एक बड़ा ताकतवर जानवर है और पुराने ज़माने में टैंकों की जगह पे हाथी इस्तेमाल होते थे। तो जब अल्लाह ताला ने उनसे इंतकाम लेना था तो अल्लाह ताला ने हाथियों के बदले में हाथियों से बड़ी मखलूक नहीं भेजी, अल्लाह ताला ने छोटे छोटे अबाबील के परिंदे भेजे और उन परिंदों ने कंकर फेंके और उन छोटी छोटी कंकरियों से वो बहुत बड़े हाथी हलाक हो गए। तो इंशाअल्लाह ताला हम, अल्लाह ताला ने हमें जो भी इस्तिताअत दी है, तौफीक दी है, हम ये समझते हैं कि हम अल्लाह ताला के वो अबाबील हैं और उन फ़िरौनी हाथों पे हम वो कंकरियां बरसाएंगे और इनको हम निस्तो नबूद करेंगे जो पिछली 5 दहाइयों से 50 सालों से इस इलाके का खून चूस रहे हैं, इस इलाके के मेरे किसान भाइयों का हक मार रहे हैं। मैंने अमेरिका भी देखा है, अफ्रीका भी देखा है, ऑस्ट्रेलिया भी देखा है, कनाडा भी देखा है, मैंने एशिया भी पूरा बरे आज़म देखा है, मैंने पूरा यूरोप भी देखा है। इंशाअल्लाह ताला तरक्की याफ्ता कौमें जिन वजूहात की वजह से तरक्की कर गई, इंशाअल्लाह उन वजूहात का नफाज इंशाअल्लाह इस ज़िला उकाड़ा में मैं करूँगा। मैंने आपको पहले भी बताया है और मैंने इत्तेहाद प्रेस क्लब दीपालपुर की तकरीब में ये ऐलान किया था कि मैं अपने वाले साहब के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला वो यूनिवर्सिटी मैं किसी हुकूमती ग्रांट से नहीं, अपनी ज़ाती जेब से इंशाअल्लाह ताला बनाऊंगा और आप लोगों के बच्चों के लिए बनाऊंगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे खूबसूरत और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के यहाँ हॉस्पिटल तमीर करूंगा कि आपको इलाज मुआवजे के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है, तमाम बुजुर्गों से मेरी एक दरख्वास्त है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत ना बदल लें। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये वक्त आ गया है कि हम अपनी गुलामी की, अपनी जहलियत की, अपनी तमाम उन गुलाम सोचों की जंजीरों को तोड़ दें और हम उठ खड़े हों और इमरान खान साहब का जो नजरिया है हकीकी आज़ादी का, उस नजरिए के साथ हम खड़े हो जाएं। आप ये देखिए हमारे सामने इमरान खान साहब की जिदोजहद है, उन्होंने 27 साल लगातार बरसगीर में आज तक इमरान खान जैसा अजीम लीडर नहीं पैदा हुआ। उन्होंने लगातार, देखें इमरान खान के पास क्या चीज मौजूद नहीं है, उनके पास कौन सी आसाइश नहीं है, लेकिन 27 साल वो आपके लिए, मेरे लिए, इस पाकिस्तान के बच्चे के लिए खड़े हैं और तागूत की ताकतों से लड़े हैं। तो हमें किस चीज ने रोका हुआ है कि हम आज ना उठें? आप लोगों ने, आप सब लोग औरंगजेब हो, आप सब ने औरंगजेब बन के दूसरे लोगों से, दोस्तों से घरों में जाके इंशाअल्लाह ताला आपने पैगाम पहुंचाना है और इंशाअल्लाह ताला MNA बनना सिर्फ हमारी मंजिल नहीं है, वजीर आजम हाउस इंशाअल्लाह ताला हमारी मंजिल है और उम्मत मुसलमान की क़यादत हमारी मंजिल है। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीतेगी, 2/3 अक्सरियत से जीतेगी, पाकिस्तान में हुकूमत भी बनेगी, इंशाअल्लाह इमरान खान साहब वजीर आजम भी बनेंगे और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान उम्मत मुसलमान के कायद और रहबर बन के उम्मत मुसलमान का जंग लड़ेंगे। आज आप देख लें, आप लोग पूरा जिला उकाड़ा इस बात का गवाह है। मेरे बड़े भाई चौधरी नूर समद साहब, जनाब चौधरी जुवेद साहब, चौधरी सुबह सादिक साहब, मेरा भाई छोटा चौधरी तनवीर इलाही और चौधरी अफजल साहब मेरे सामने खड़े हैं। जिस तरह से आज उन्होंने माशाल्लाह इस्तकबाल किया, तारीख रकम कर दी और इसके अलावा मेरी तमाम बरादरी एक मुठ होके इंशाअल्लाह ताला खड़ी हो गई है और ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह की मदद आ चुकी है और फतह बिल्कुल करीब है। अल्लाह आप सबका हमारा हामी और नासिर हो। नाज़रीन, मैं इस वक्त चौधरी साहब के वो आबाई हल्के में मौजूद हूँ जहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत की। इस वक्त इस हल्के के अंदर जितने भी इनके बरादरी के लोगों ने इस्तकबाल किया और ये पहला जलसा है PTI में शामिल होने के बाद। चौधरी साहब, पहला सवाल ये है कि मैंने देखा इमरान खान ने वहाँ पर मोरूसी सियासत को चैलेंज किया हुआ, आपने जो दीपालपुर हल्के की मोरूसी सियासत है उसको चैलेंज कर दिया है और ये पिछले सालों से आप देख रहे हैं निचोड़ रहे हैं आवाम को, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, पूरी रोड टूटी हुई है, किस तरह आप इनका मुकाबला करेंगे? जी देखें, मैं इस हल्के में आया इसलिए हूँ
क्योंकि इस हलके को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे लीडरशिप का फुकदान था, यहाँ पे लोग लावारस थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जो लोग यहाँ पे वोट लेके अवाम के ज़रिए अवानों में गए हैं, अवाम के ज़मीर का सौदा कर रहे थे, और हमारा विजन खान साहब के विजन के साथ है जी। ज़ाहिर सी बात है, खान साहब ने जब मरूसी सियासत को चैलेंज किया है, मैंने सिर्फ ज़िला उकाड़ा की सियासत को और मरूसी सियासत को चैलेंज नहीं किया। मैं खान साहब का सिपाही हूँ और मैंने पूरे पाकिस्तान के ये जो जागीरदार और वडेरे हैं, इनकी सियासत को मैंने चैलेंज किया है। और इंशाल्लाह हम पंजाब में क्लीन स्वीप करने के बाद सिंध में जाके ये जो जरदारी है ना, इसकी इंशाल्लाह ऐसी मुरम्मत करेंगे और ऐसा इसको सबक सिखाएंगे कि ये जो सिंध में इसने लोगों को गुलाम बनाया हुआ है और सिंध की आवाम पे ये लोग जो जुल्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भी इंशाल्लाह पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, पूरे पाकिस्तान में करेगी और इंसाफ का निज़ाम राइज होगा, इंसाफ का बोलबाला होगा इंशाल्लाह ताला। इस इलाके में मैंने इलाका देखा बड़ी पसमानदगी है, लोगों की किस तरह आप दादरसी करेंगे? देखें, ये पसमानदगी, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पसमानदगी है क्यों। पिछले 50 साल से जिस सड़क पे मैं सफ़र करके आया हूँ, इस सड़क के लिए 3 बार फंड रिलीज़ हो चुके हैं। वो फंड यहाँ के मुतलका अहदेदार खा चुके हैं। पिछले 50 साल से अवाम की जेबों पर ये लोग डाका डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये इलाका पसमानदगी में। इंशाल्लाह जो हमारे मुक़तदर इदारों से, हलकों से, डिपार्टमेंटों से जो फंड्स आते हैं, इंशाल्लाह वो हम आवाम तक पहुँचाएँगे, अपनी जेब से भी लगाएंगे, गवर्नमेंट का पैसा भी इस हलके पर लगाएंगे। इंशाल्लाह मेरा ये ख्वाब और ड्रीम और मेरी मंजिल है कि इस इलाके को मैंने मिनी लाहौर बनाना है इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने जो साहब की बातें सुनी।